Just 2 years ago, AI taking our jobs was just a speculation. But आज हमारे जॉब सही में खतरे में है. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. It can be very harmful. I expect there to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. एक तरफ कंपनीज आर रिपोर्टिंग अ बूस्ट इन प्रोडक्टिविटी, बट दूसरी तरफ ईमेल्स के थ्रू हजारों लोगों को फायर किया जा रहा है. We created AI to help us, but instead it is destroying our livelihood. What if I tell you that the same thing has happened 3 times before in the history of humankind, and we can predict exactly what's going to happen in the coming few years? तो सबसे पहले जाते हैं हम प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 पे. मार्क ट्वेन ने बात बोली थी, हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स. सो द ईयर इज 1750. ये टाइम पे देयर वर अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स, ब्लैकस्मिथ्स, क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स. फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स जो पूरी कम्युनिटी को एनफ होते थे, एंड वीवर्स कपड़े बनाते थे जो पूरा शहर खरीद लेता था, एंड क्राफ्ट्समैन मेड बोट्स, फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स एंड थिंग्स दैट पीपल यूज्ड. मर्चेंट्स ट्रेड करते थे स्पाइसेस, कॉटन, जो आपने हिस्ट्री बुक्स में भी पढ़ा होगा. बैक देन द वर्ल्ड वाज बिल्ट ऑन मैनुअल लेबर, slow processes and human skill. There were a lot of self-sustaining communities. Everything was done by hand, and whatever you can do with your hand became your profession. This was a world where work was physical, repetitive, time-consuming, but deeply personal. Everyone was some sort of a creator. They created physical things from ideas. इसी टाइम पे suddenly कुछ change होता है. See, a lot of people during that time was involved in science and research in different parts of the world, either due to curiosity or because of pure greed to make more money. They were searching for something that could replicate human labor, human force, so that they can produce more, sell more, and earn more money. And UK में there was one breakthrough after many experiments. They had perfected a machine that could potentially replace all humans. The steam engine, जो steam के pressure की मदद से force पैदा करता है. The single invention broke the entire system and the whole world got their hands on it. Simple भाषा में steam engine heat को mechanical energy में बदलता है. इसका पहला use case था pumping water out of wells. Seemed harmless, right? बट धीरे धीरे स्टीम इंजन के ऊपर मशीन बनती गई विच स्टार्टेड रिप्लेसिंग ह्यूमंस. ट्रैक्टर्स रिप्लेस फार्मर्स, टेक्सटाइल मिल्स रिप्लेस हैंडलूम वीवर्स. मशीन्स टुक ओवर द वर्क दैट ह्यूमंस हैड बीन डूइंग फॉर जनरेशंस. पहले काम होता था इंसान के दम पे, या तो अपने हाथ पैर से, या एनिमल से, या वाटर मिल से. बट नाउ एवरीथिंग वाज रिप्लेस्ड बाय द स्टीम इंजन. मशीन्स डिड नॉट गेट टायर्ड, दे डिड नॉट नीड स्लीप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली they could do the work of 10 men in half the time. This was the birth of Industrial Revolution 1. Slowly, the old professions started vanishing and the new ones started emerging. And because people didn't have a choice, they had to take these new jobs. Instead of walking to your field, now you would walk to a crowded, smoke-filled factory. You would stand next to a machine all day, pulling levers or watching gears spin. For the first time, people started working for companies rather than for themselves. And just like that, the definition of work changed. Work was no longer about creating with your hands. It was about operating machines. It became scheduled, repetitive, controlled. People went from being creators to being operators. ये पहली बार था हिस्ट्री में जब टेक्नोलॉजी ने ह्यूमंस को रिप्लेस किया था. आज जो मॉडर्न स्लेवरी चल रही थी, वो शायद यहीं से शुरू हुई थी. आफ्टर रेवोल्यूशन 1, हैंडमेड लेबर हैड डाइड. मशीन की जो पावर थी वो इमर्ज होने लग गई और लोग ऑपरेटर्स बन गए. एंड फैक्ट्री ओनर्स जो थे वो एक्चुअली में इस टाइम पे रिच होने लग गए. पीपल स्टार्टेड एडजस्टिंग टू द न्यू लाइफ. द फैक्ट्री स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स. द कंजम्पशन इंक्रीज्ड एंड इकोनॉमीज ने स्केल करना शुरू किया, एंड इसलिए डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. एंड इस डिमांड को मैच करने के लिए कुछ तो बदलना ज़रूरी था. And the current way of working was not going to cut it. So then began the Industrial Revolution 2 in the 1870s. Historians बोलते हैं कि this was the biggest change in the history of humankind. Industrial Revolution 2 start होता है एक invention के साथ, electricity. After the first Industrial Revolution, people saw how profitable industrialization was. So now they wanted more. They wanted an even bigger scale, and to do that, they again went deep into science to find something that would be much more powerful than steam engine.
and then they found it. पहले पावर आता था लोगों के हाथों से, फिर पावर आया स्टीम के प्रेशर से, बट अब पावर आ रहा था एक वायर से. अब सनसेट के बाद भी लाइट जलती थी. मशीन्स अब ज्यादा एफिशिएंसी में काम करने लग गई थी, and this led to even more demand for things, and it led to a lot of inventions as well. Electric generators, automobiles, airplanes, washing machines, telephone, सब इन्वेंट होने लगा. This led to a big change in the world landscape. Factories started hiring at scale. Craftsmen नहीं, farmers भी नहीं, ना ही blacksmiths. सिर्फ normal लोग as employees. Ordinary लोग जिनको कुछ नहीं आता था, उनको कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना है, सेम टास्क को हर दिन बार बार रिपीट करते रहो. Now there was literally no skill required except to follow instructions. Majority of the jobs included manufacturing, transport, mechanics, and repairs. Everything became about servicing the machines. And as if this wasn't enough, Henry Ford, one of the biggest industrialists, took it one step further and redesigned the factory floor. Machines को एक straight line में लगा दिया. इसी को कहते हैं हम assembly line. Humans को जैसे mindless robots की तरह बना दिया था इस assembly line ने. It was a revolution in mass production. Products that once took months to produce now took just hours. Work had officially shifted from craft to process. And to add to that, Henry Ford officially invented the 9-to-5. And this wasn't just change in work, it was a change in identity. From the pride of making something with your own hands to the boredom of doing the same thing again and again and again and again. As the factories and companies started growing, now rich people started owning parts of companies to get even richer. And normal people just became robots. And इसी के साथ एक नया layer form होता है, a layer of managers that would oversee कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मैनेजर्स का क्या काम था? इनका काम था बस अमीरों को रिपोर्टिंग देना और गरीबों से काम करवाना. टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेंशन ने वर्क का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया. दिस न्यू लेयर वाज डिफाइंड बाय स्पेशलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही थी एंड बस मशीन ऑपरेट करना इनफ नहीं था. अब रिक्वायरमेंट बन गई थी मैनेजर्स की, इंजीनियर्स की, अकाउंटेंट्स की, मार्केटर्स की, people who could rot learn specific processes and call themselves as experts. तो पहले काम सिर्फ प्योर हैंडमेड क्रिएशन हुआ करता था, उसके बाद वो ऑपरेशंस में बन गया एंड देन इट बिकेम स्पेशलाइजेशन ऑफ वन पर्टिकुलर फील्ड. पीपल हैड नाउ बिकम स्पेशलाइज्ड प्रोसेस फॉलोअर्स एंड इंडस्ट्रियल टाइकून्स टुक ओवर. सिर्फ थोड़े ही सालों में सिटीज बड़ी होने लग गई, स्ट्रीट्स बिजी होने लग गए, छोटे शहरों से लोग बड़े शहर जॉब के लिए जाने शुरू हो गए एंड हैविंग अ जॉब became the new normal. You now worked on someone else's assembly line. You were a small part of somebody else's big business. एक छोटा सा प्यादा in a whole chessboard. A manager, a marketer, a bookkeeper, all for someone else. And घर पे भी life बहुत तेजी से transform हो रही थी. Electricity bought fans and bulbs. Radio bought entertainment. Mass production ने सामान को इतना सस्ता कर दिया था, साबुन, कपड़े, यूटेंसिल्स, घड़ियां. उसी के साथ साथ साइंस भी इतनी तेजी से स्पीड में बढ़ रहा था कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया जहाँ पे ह्यूमंस एंड मशीन्स कैन डू थिंग्स टुगेदर. बट अ फ्यू पीपल स्टिल वांटेड मोर. सो दे स्टार्टेड थिंकिंग, व्हाट इफ मशीन्स कुड डू थिंग्स on their own if a command was given. Now that's where the seeds of Industrial Revolution 3.0 were sown. Slowly, technology was invented. 1969 में दुनिया का पहला programmable logic controller was invented, basically a smart chip. And पहली बार machines weren't just doing manual tasks, they were taking decisions. अगर X होता है तो Y करो, अगर sensor beep होता है तो shut down कर दो system को. It was basic, but it was still revolutionary. And इसी टाइम के वक्त computers were shrinking in size and growing in power. पहले एक रूम जितना बड़ा CPU होता था, अब आप उस सेम CPU को एक डेस्क में भी रख सकते हो. गवर्नमेंट्स, बैंक्स, लार्ज कंपनीज, सब लोगों ने ऑटोमेशन शुरू कर दिया था, कैलकुलेशंस का, पेरोल्स का, इन्वेंटरीज का, सिंपल टास्क का. एंड दिस गिव राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ जॉब, द नॉलेज वर्कर. People who did not build or operate machines, they used machines to think. They used machines to fasting their work. Think of an accountant using spreadsheet, engineers using a tool like CAD, clerks inputting and processing data. For the first time in human history, value was being created from mental output
एंड नॉट फिजिकल लेबर। पहले आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर, फाइल्स, टाइपराइटर्स चाहिए होते थे अपनी जॉब करने के लिए, बट अब एक आदमी सिर्फ एक कंप्यूटर और एक राइट सॉफ्टवेयर के साथ सारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जैसे एडवांस चीजें भी कर सकता था। काम फिजिकल स्ट्रेंथ से मेंटल स्ट्रेंथ में शिफ्ट हो गया। एंड ये तो क्रेजी पार्ट भी नहीं है। क्रेजी पार्ट तब शुरू होता है जब इंटरनेट आता है। ओरिजिनली इंटरनेट को इसलिए इन्वेंट किया था ताकि गवर्नमेंट एजेंसीज अपने आप से बात कर पाए, बट इन 1990s इट बिकेम कमर्शियल एंड दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। थोड़े ही सालों में इट बिकेम वाइडली अडॉप्टेड। Businesses saw they could reach the global markets. Writers ने देखा कि उनको बुक पब्लिश करने की भी अब जरूरत नहीं है, and students saw they could learn without the need of libraries. This was a completely new way of doing things. And बहुत ही जल्द कंपनीज ने अपनी ब्रोशर्स को ऑनलाइन डालना शुरू कर दिया। Emails became the new corporate communication. Web cafes बहुत सारे इंडियन सिटीज में भी आने लग गए। And by the early 2000s, if you know how to use Microsoft Office, you could be a stellar employee. This revolution created a lot more work opportunities, especially in India, because suddenly Western companies could hire workers in India to handle their customer support, data entry, financial analysis at a fraction of cost क्योंकि India cheap होता था. And that's why India is popular for so many BPO companies because यहाँ पे English speaking, computer literate workers आने लग गए. And that's where India also transformed from a low middle class country to a little higher level middle class country. कॉल सेंटर्स बूम होने लग गए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टीयर 1, 2, 3 में आने लग गए। प्रॉमिसिंग जॉब्स टू एनीवन हु कुड स्पीक क्लियर इंग्लिश इन इंडिया वुड ऑलमोस्ट बी गारंटीड। एंड इसलिए हमारे मम्मी पापा हमें बोलते थे कि इंग्लिश सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये सब चीज में ये समझना भी बहुत जरूरी है कि वर्कर्स वर नाउ अ कमोडिटी। जो आप कर सकते थे वो और बहुत लोग कर सकते थे। तो अगर आपने अपना काम अच्छा नहीं किया, उनके पास 99 और लोग हैं आपको रिप्लेस करने के लिए। एंड ये शिफ्ट की वजह से सक्सेस का डेफिनेशन भी बदल गया। इंडस्ट्रियल एज में ओनरशिप ऑफ टूल्स एंड मास्टरी ऑफ क्राफ्ट मेड यू वैल्यूएबल। डिजिटल एज में वैल्यू वाज इन मास्टरिंग टेक्नोलॉजी, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिस्टम्स, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड स्पीक क्लियरली व्हाइल अडैप्टिंग क्विकली टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एंड इसकी वजह से एक और न्यू लाइन ऑफ वर्क का इन्वेंशन हुआ। And for the first time in human history, you could make a living without touching a physical product. किसी बॉस के बिना या अपने रूम को छोड़े बिना भी आप पैसे कमा सकते थे. And this is where the first wave of digital workers came in the form of coders, web developers, digital marketers. They were the first people who built the infrastructure of the internet itself. Website बनाना, forums बनाना, portals बनाना, platforms बनाना. It's like जो आप shops, roads और सड़कों में देखते थे, अब आप इंटरनेट में जाके उसको महसूस कर सकते हो. And इसके बाद आए UI UX experts, graphic designers, visual storytellers. And जैसे जैसे इंटरनेट तेजी से बढ़ने लग गया, the demand for designer also exploded. Suddenly, Photoshop wasn't just a software, it was actually a career path. And जैसे जैसे और लोग ऑनलाइन आते लग गए, there was a need to organize, there was a need to promote and sell in this new digital world. And इसकी वजह से digital marketers का birth हुआ. And फिर आई content की दुनिया. This is when social media started becoming mainstream. This gave birth to the creator economy, a completely new industry where your personal brand was your source of income. फेसबुक आया था 2010 में इंडिया में, उसके बाद से आप देख सकते हो कैसे इंस्टाग्राम आया, ट्विटर भी इसी टाइम के अराउंड आया था. एंड सडनली सोशल मीडिया एक नया फिनोमेना बन गया था. ब्रांड्स कंटेंट बनाने लग गए. एंड 2015-16 आते आते इंडिया में जब जियो भी आ रहा था, क्रिएटर इकोनॉमी भी आने लग गई. एंड आज क्रिएटर इकोनॉमी को करीब करीब 10 साल इंडिया में भी हो गए. एंड इसी टाइम पे वीडियो एडिटर्स, थंबनेल डिजाइनर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, कम्युनिटी मैनेजर्स, ब्रांड कोलैबोरेशन वाले लोग, इन सब की नीड आ गई. ये जॉब्स 15 साल पहले नहीं थी, 10 साल पहले भी थोड़ी ही थी, बट आज पूरी टीम्स, पूरी इकोनॉमी इन बिजनेसेस के अराउंड बन गई है. इस इकोनॉमी में माइंड आपका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन गया. एंड योर अंडरस्टैंडिंग एंड यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज एक और एडवांटेज. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन. एंड रेवोल्यूशन 3 के बाद एवरीथिंग दैट वाज मैनुअली ऑपरेटेड डाइड. And digital tools had taken over. This was the age of the intellectual athlete, and for a while it worked. Until in 2022, something came along that could think, write, code, and even create. Not a new worker, but a new species of labor altogether. AI. ChatGPT की introduction के साथ ही पूरी दुनिया ही हिल गई. This is the revolution 4.0.
और what once seemed to be the most human task, writing, लिखना, communicate करना, was now done by a robot with better speed, better information and better creativity. And ये tool सिर्फ आपको respond नहीं करता था, it would basically create new output. हम सबको लगता था AI सिर्फ boring robotic काम करेगा, हमारे human काम थोड़ी करेगा. And now with ChatGPT and AI, everybody is worried. Copywriters, coders, designers, सब लोगों को डर लग रहा है because jobs उनकी replace हो रही हैं. Anyone जिनकी job cognitive processing, research और pattern recognition पे थी, suddenly उन सबको डर लग रहा है. पहले मशीन ने physical labor को replace किया. So humans had to survive using mental labor. But now that is also being replaced by machines. तो अब Revolution 4.2 में क्या होगा ये देखते हैं. First, let's understand the AI. AI अपने आप में खुद सोच नहीं सकता है. It does not even have a brain. All the generation that it's doing is based on data जो हमने उनको दिया है. All these platforms, ChatGPT, Perplexity, they are trained with millions and millions of data. Now it has gotten really good, of course, but it cannot think of something new. It can just recognize pattern उसी data से जो हमने दिया है and थोड़ा उसमें changes करके आपको दे देता है. And to achieve human level intelligence, जिसको AGI कहते हैं, Artificial Generalized Intelligence, अभी तक के तो वो पॉसिबल नहीं हुआ है एंड अभी तक के हमें जितना भी पता लगा है फेलियर्स हुए हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आ सकता. टू बी ऑनेस्ट, आई फील कि वो अगले 6 महीने 1 साल में तो आ ही जाएगा. बट GPT ये बहुत अच्छे से कर सकता है. जिस चीज़ में भी पास्ट डेटा को यूज़ करके आउटपुट निकाल सकते हैं, GPT उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो एज अ कोडर, before majority of your work was to code whatever was given to you. बट अब AI आपके लिए वो काम कर सकता है एंड आपका एक्चुअली मेन काम है प्रॉब्लम्स को देखना. AI ने वो काम ठीक से किया है कि नहीं किया है वो चेक करना होगा. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रमोशन फ्रॉम अ कोडर टू अ मैनेजर ऑफ कोडर्स. स्टेबल डिफ्यूजन के भी जो फाउंडर है उन्होंने भी यही कहा है कि बहुत सारे ऐसे कोडर्स हैं जिनका अब काम डायरेक्टली कोड लिखना नहीं होगा बट लाइब्रेरी की तरह यूज करके चेक करना होगा कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड दिस इज इन लाइन फ्रॉम द हाइपोथेसिस दैट AI कैन ओनली डू थिंकिंग लेस टास्क एंड नॉट ओरिजिनल क्रिएटिव टास्क. तो अगर आप वो वाले काम कर रहे हो जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, आप रिप्लेस हो जाओगे. इफ यू लर्न हाउ टू थिंक ओरिजिनल आइडियाज, कनेक्ट द डॉट्स एंड क्रिएट समथिंग न्यू, इस इकोनॉमी में आप बहुत ज्यादा थ्राइव करोगे. सो मेक योरसेल्फ इम्पॉसिबल टू इग्नोर बाय बीइंग यूनिकली ह्यूमन in an increasingly robotic world. So now that you understand कि AI क्या कर सकता है और क्या नहीं, let's see what kind of jobs will be there in the future and कौन सी jobs चली जाएंगी and कौन सी jobs आएंगी. For hundreds of years, because of these revolutions, our jobs had become very input based. 8 घंटे काम करो, सैलरी मिल जाएगी. कॉलेज जाओ, स्किल सीखो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड जॉब लग जाएगी. But now you can build a fully functional website in just 10 minutes. You can design a pitch deck, एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो, नया प्रोडक्ट रोडमैप बना सकते हो, नया ऐप भी बना सकते हो without even hiring a team thanks to AI and AI agents. पहले जो चीज़ करने में 6 हफ्ते लगते थे, अब वो काम आप 6 घंटे में कर सकते हो. इनपुट इतना सस्ता हो गया है कि अब आउटपुट की वैल्यू है. इसका मतलब क्या है ये समझते हैं. अगर आपके पास पहले एक टेक आइडिया था, मान लो आप एक नॉन टेकी आदमी हो जिसको एक टेक का आइडिया है कि मेरा ये ऐप बनाऊंगा, इसमें मेरे को 1 मिलियन यूजर्स आएंगे, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन से पैसे मिलेंगे. मैक्सिमम पीपल वुड स्टॉप क्योंकि उनको कोडिंग नहीं आती थी, तो वो या तो CTO ढूंढते थे या तो वो आइडिया ही बंद करते थे. पहले आपको प्रॉब्लम भी ढूंढनी है, सोल्यूशन भी ढूंढना है, ऐप भी बनाना है, ऑपरेशंस भी देखना है, सब कुछ करना है. अब AI की वजह से आपका आधा काम वो कर देगा. आपको बस ये बताना है कि क्या बनाना है, क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, वो सब आपको उसको इनपुट आपको देना है, आउटपुट वो आपको निकाल के दे देगा. सो एज अ नॉन टेकी आप AI को यूज करके ऐप बना सकते हो जो कि शायद 5 साल पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था. एंड यू हैड टू रिलाई ऑन अ टेक को-फाउंडर और हायर अ टेक टीम. सो व्हाट इट्स एक्चुअली डूइंग इज नॉट लिटरली रिप्लेसिंग यू, इट्स हेल्पिंग यू डू थिंग्स विच यू डिड नॉट नो हाउ टू डू. पहले सारा काम आप कितना एफर्ट डालते थे उस पर निर्भर करता था, बट आज आपके लिए AI एफर्ट डाल देगा. तो आपका एक्चुअली सारा काम है क्रिएटिव थिंकिंग करना, आउटपुट निकालना, A/B टेस्टिंग करके सही प्रॉब्लम्स और सही सॉल्यूशंस पे जाना. तो अब समझते हैं इस रेवोल्यूशन में आप कैसे अमीर बन सकते हो, आपको कौन सी स्किल सीखनी है. क्योंकि इस AI रेवोल्यूशन के बाद स्लो सिस्टम सारे बाहर हो जाएंगे एंड ऑटोमेशन अंदर आ जाएगा. तो स्किल नंबर 1 जो आपको सीखनी चाहिए वो है
बिजनेस स्ट्रैटेजी। अनलेस यू आर इन्वेंटिंग समथिंग कंप्लीटली न्यू, आप एक मार्केट में गैप ढूंढ सकते हो एआई की ही मदद से और थोड़े ही समय में प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू कर सकते हो। विच मीन्स बॉटलनेक इज नो लॉन्गर एग्जीक्यूशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, इंडिया हैकर हो, फाउंडर हो, कुछ भी हो, आपको बिल्ड करना है और डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ताकि आप जल्दी से बना के शिप कर पाओ। तो पहली स्किल तो यही है कि शिपिंग एआई से यूज्ड हो जाओ कि आप जल्दी जल्दी प्रोडक्ट शिप कर पाओ। एंड दूसरी की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है तो आप अपने सामान को पहुंचाओगे कैसे। एंड ये सब के लिए यू नीड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाइंग द रियल यूजर पेन, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर का साइकोलॉजी क्या है, एक्सपेरिमेंट्स रन करके बार बार ए बी टेस्टिंग करना, बार बार प्रोडक्ट्स फास्ट निकालना, उनमें चेंजेस करना, ट्रैफिक ड्राइव करना, ट्रस्ट ड्राइव करना, अटेंशन ड्राइव करना। बिकॉज अगर आप बिल्ड नहीं कर रहे हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी फर्क पड़ेगा जब सच में कोई आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है। स्किल नंबर 2, ये एक ऐसी स्किल है, रेवोल्यूशन 1 हो, 10 हो या 20 हो, ये कभी नहीं मरेगी। द स्किल ऑफ सेल्स। बिकॉज जितने भी रोबोट्स आ जाएं, काम तो P2P होता है, पीपल टू पीपल, एंड पीपल अंडरस्टैंड स्टोरीज, पीपल अंडरस्टैंड इमोशंस। जेन्युइन सेलिंग सीखना, रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जितनी ये एआई और रोबोटिक्स आ रहे हैं उतने हम अनएम्पैथेटिक बनते जा रहे हैं। अगर आप एक ग्रोथ मार्केटर हो, आपको कैक दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक कॉपी राइटर हो, आपको एआई की मदद से ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो इमोशंस को छूकर रेवेन्यू लेके आ पाए। अगर आप एक सोशल मीडिया पर्सन हो, यू हैव टू जनरेट कॉन्टेंट विच विल ड्राइव व्यूज, वायरलिटी फॉर योर ऑडियंस। स्किल नंबर 3 है अच्छे से कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन। इन टुडेज वर्ल्ड कम्युनिकेशन इज योर न्यू कोड। एआई को नहीं पता है कि आपका क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है। एआई को नहीं पता कि कौन सी पिच डेक को हटाना है। एआई जूम कॉल को बंद नहीं कर सकता। दिस इज वेयर ह्यूमंस स्टिल विन। पीपल हु कैन सेल एन आइडिया, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग टाइम जोन्स में अलग अलग टाइप के लोगों से बात करके उनको अलाइन करना, टीम्स को नेविगेट करना, क्लाइंट कॉन्वर्सेशंस में नेगोशिएट करना, दैट सटल ह्यूमन इंटरफेस को लेके आना कभी भी रिप्लेस नहीं होगा। एंड इसी से रिलेटेड है स्किल नंबर 4, विच इज बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, बिल्डिंग योर यूनिक वॉइस। यह एक कंटेंट बना सकता है बट ट्रस्ट नहीं जीत सकता है। एंड इवन इफ कंटेंट गेट्स ऑटोमेटेड, द ब्रांड बिहाइंड दैट कंटेंट स्टिल इज ह्यूमन। एंड दैट्स व्हाई कंटेंट क्रिएशन is no more a career, but actually a 100% need in every career that you are pursuing. चाहे creator हो, entrepreneur हो, startup founder हो, everyone now today has to build an audience, capture attention, nurture trust and monetize that reach. क्योंकि long run में the only distribution channel you truly own is your personal brand. People won't work with you because of your great design or great marketing. वो आपके साथ इसलिए काम करेंगे क्योंकि वो आप पे भरोसा करते हैं, वो आपकी नॉलेज पे भरोसा करते हैं, वो आपकी इनसाइट पे भरोसा करते हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी जो कंटेंट की वाया दिख रही है उससे इंप्रेस होते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि एआई से इतना मत डरो। इट्स अ ग्रेट टूल टू हैव बाय योर साइड। अगर आपने ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आएगा कि आप जो भी करना चाहते हो एक्चुअली लाइफ में, वो एआई आपको फास्टर करने में हेल्प करेगा। It's like your personal assistant on steroids with probably the whole entire universe knowledge inside its brain, which can build, create, edit, research and so much more. All you need to do is come with a creative mind, research करो, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो समझो, and AI को embrace करके चीजें faster करो। If you do that, you are gonna be fine. आपको क्या लगता है ये 4th revolution, AI revolution में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा काम आने वाली है? कमेंट करो। आई बटन पे क्लिक करके हमारे बाकी मोनोलॉग और पॉडकास्ट देखो, जिससे आप बिजनेस, कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो एआई को या तो ओवर एस्टिमेट कर रहा है या अंडर एस्टिमेट कर रहा है।